Hello, friends. Welcome back to a new story. As you can see the title here, Value of Life. तो स्टोरी को हम आज कवर करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम उस स्टोरी के थ्रू देखेंगे क्या वैल्यू है हमारे लाइफ का। हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि लाइफ का वैल्यू क्या है। भाई हम तो कुछ नहीं है, लाइफ का वैल्यू क्या है। तो चले हमारे साथ बने रहिए, हम उस स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि असली लाइफ का वैल्यू कैसा होता है एंड क्या है। तो पहले एक बार हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि रीडिंग जो है आपका भी इम्प्रूव हो, मेरा भी इम्प्रूव हो। तो चले बने रहिए हमारे साथ, पढ़े हमारे साथ, पढ़ने की कोशिश करें। द वैल्यू ऑफ लाइफ। Once there was a man with an inferiority complex. He felt he was no match to others and had no value in his life. One day, he went to the priest and asked, "What is the value of my life?" And the priest gave him a stone and said, "If you want to know the value of your life, take this stone to the market. And if anyone asks the price, don't say a word, just raise your two fingers." The man went to the market as the priest told. He was standing in the corner of the market where many people would cross him. Then one woman approached him and asked, "What is the cost of the stone?" The man does not say a word, just raises his two fingers. She said, $2, I will take it. The man got surprised and came back to the priest and said, "There was a woman at the market who was ready to give $2 for the stone." The priest replied, "Now I want you to go to the auction arena, and if anyone asks the price, do not say a word, just raise your two fingers." The man went to the auction arena and stood in the hall with the stone. After about an hour, an old man approached the man and said, "Sir, are you planning to sell this stone? If yes, how much is this stone?" The man does not say a word, just raised his two fingers. The old man said, $200. I will take it. The man again got surprised and came back to the priest and said, "There was an old man in the auction arena who was ready to give $200 for this stone." The priest replied, "Good. Now the last place I want you to take the stone is the pawn shop in the city mall. If anyone asks the price, just raise your two fingers." The man went to the city mall. After finding it, he went into the shop. The shop owner saw the stone and screamed, "Wow, the stone! It is the one I have been searching for this many years. How much is it?" The man does not say a word, just he raised his two fingers. The shop owner says, $200,000. I will buy it. The man does not believe what he just heard. He came to the priest and said, the pawn shop owner was ready to give $200,000 for the stone. The priest smiled and said, "Now, do you understand the value of your life? Life is all about where you are placing yourself. Your value can be either $2 or $200,000. You have to decide. For some people, you are just like passing clouds. They will use you and forget. And for them, you will be worth nothing. But for some people, you are everything. They will value you so much, they will never leave you. So, it is up to you to decide where you place yourself in life and value it. Moral. Moral of the story: each one of us possesses unique value in our life. We have to utilize it in the place where it is most valued. Because we are not given importance in some place or by certain people does not mean we do not have value in our life. We have to keep exploring and utilizing our talents and do the hard work. One day we will find a place where they give importance to our value. तो ये हमारा रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने ट्राई की
कि अच्छे से अच्छे मतलब स्लोली उसको पढ़ने की, ताकि आपकी समझ में आ जाए पूरा रीडिंग एंड आपका रीडिंग भी इम्प्रूव हो। तो चले अब बने रहिए हमारे साथ, उसको लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चले हम फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं एंड स्किप किए बिना ही वीडियो को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वर्ड बाय वर्ड उसको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, तो समझे उसको अच्छी तरह से। एंड एक बात बता दें आपको कि ये आई थिंक 16 नंबर हो जाएगा, उसके पहले 15 स्टोरीज़ और भी हो चुका है, 15 स्टोरीज़। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ उसको देखे, मतलब जाके देख ले, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ है एंड आपके मतलब लैंग्वेज सीखने में बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें एंड आप भी इस नॉलेज को मतलब स्प्रेड करने में कंट्रीब्यूट करें। तो हमारा जो फर्स्ट है वैल्यू ऑफ लाइफ, जो टाइटल है, वैल्यू मतलब कीमत है, लाइफ का मतलब जीवन का कीमत कभी कभी हमको समझ में नहीं आता हमारे जीवन का क्या कीमत है। तो स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा लाइफ का, हमारा जीवन का कितना वैल्यू है, कितना कीमत है। फर्स्ट लाइन, वंस देयर वाज अ मैन, मतलब एक मैन था, कभी एक मैन था, एक आदमी था विद एन इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। विद एन इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है कि अपने आप को मतलब एक हीन भावना मतलब ऐसा समझना कि अरे मैं क्या हूँ, अरे मेरा तो कोई मतलब वैल्यू नहीं है, अरे मेरा ज़िंदगी क्या हो गया, कुछ भी नहीं हूँ मैं, ऐसे एक भावना आ जाता है। इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स मतलब हर वक्त ऐसा एक भावना रहता है, हीन भावना उसको कहते हैं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। उसको समझे, उसको मतलब याद रखें। ही फेल्ट, वो समझता है, ही वॉज नो मैच टू अदर्स, के मतलब दूसरे के साथ उसका कोई मैच ही नहीं है, दूसरे के साथ कोई मैच ही नहीं है। एंड हैड नो वैल्यू इन हिज लाइफ, एंड उसका लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा समझता है हर वक्त। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वेंट टू द प्रियस्ट, वो गया, प्रियस्ट मतलब पुजारी है, एक पुजारी के पास गया एंड आस्क्ड, एंड पूछा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। तो पुजारी बताओ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, मेरा जीवन का वैल्यू, मेरा जीवन का कीमत क्या है, वो जानने के लिए गया पुजारी के पास। एंड द प्रियस्ट गेव हिम ए स्टोन, एंड द प्रियस्ट जो है, पुजारी जो है, गेव मतलब दिए, हिम उसको, स्टोन मतलब एक पत्थर दिए, एंड सेड, एंड कहा, इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू नो मतलब अगर तुम जानना चाहते हो, द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जीवन का कीमत, टेक दिस स्टोन, टेक मतलब लाना, तो लाओ इस स्टोन को, इस पत्थर को लाओ, टू द मार्केट मतलब ले जाओ, टू द मार्केट बाजार में। एंड इफ़ एनीवन आस्क्स द प्राइस, एंड अगर कहीं उसका प्राइस मतलब पूछता है, अगर कहीं इफ एनीवन आस्क्स इट्स प्राइस मतलब कोई उसका प्राइस पूछता है, तो डू नॉट से ए वर्ड, कोई भी वर्ड मतलब कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, जस्ट क्या करो, जस्ट राइज योर टू फिंगर्स, अपना दो उंगली उठा दो बस। अगर कोई भी उसका दाम पूछे कि कितने का है भाई, तो कुछ ना बोलो, जस्ट क्या करो, अपना दो उंगली उठा दो। उसके बाद क्या हुआ, द मैन वेंट टू द मार्केट, वो आदमी गया, वेंट मतलब गया, टू द मार्केट बाजार गया, एंड द प्रियस्ट टोल्ड, एज द प्रियस्ट टोल्ड, जैसा पुजारी ने कहा है वैसा किया। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट, मार्केट के एक कॉर्नर पे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट वेयर मैनी पीपल वुड क्रॉस हिम, कॉर्नर पे खड़ा था जहाँ मतलब बहुत सारे मतलब लोग उसको क्रॉस करके जाते हैं, ऐसा एक जगह पे मतलब खड़ा हुआ। देन वन वुमन अप्रोच्ड, एक औरत मतलब आई, एक औरत अप्रोच मतलब पहुंची उसके उसके पास, हिम, एंड आस्क्ड, एंड पूछा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द स्टोन, मतलब उस स्टोन का दाम कितना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट, कॉस्ट मतलब दाम होता है, द स्टोन मतलब पत्थर का दाम कितना है। द मैन डज नॉट से ए वर्ड, तो उस आदमी ने कुछ नहीं बताया, जैसा कि प्रियश ने कहा है, जस्ट क्या कर दिया, जस्ट राइजेस हिज टू फिंगर्स, जस्ट अपना जो दो उंगली है उसको ऊपर उठा दिया। शी सेड, अब वो मतलब कह रही है, $2, ये क्या $2 है, आई विल टेक इट, मैं ले जाऊंगा उसको, मैं उसको ले जाऊंगा। आदमी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसका टू उंगली उठाया था, दो उंगली, तो औरत ने समझ ली कि $2 होगा, तो वो कह रही है कि आई विल टेक इट, मैं उसको ले जाऊंगा। द मैन गॉट सरप्राइज्ड, जब उस आदमी ने ये सुना कि औरत तो $2 कह रही है, तो सरप्राइज्ड हो गया, ताज्जुब हो गया। एंड केम बैक मतलब फिर आया, बैक करके कहाँ आया, फिर आया टू द प्रियस्ट के पुजारी के पास, एंड सेड, एंड कहा, देयर वाज ए वुमन, एक वुमन था बाजार में, एक मतलब औरत थी, एट द मार्केट बाजार पे, हु वाज रेडी, जो रेडी था, टू गिव $2 फॉर द स्टोन, उस पत्थर के लिए $2 देने के लिए रेडी थी वो औरत।
द प्रिएस्ट रिप्लाइड, उस पुजारी ने रिप्लाई किया, नाउ, अभी, आई वॉन्ट यू टू गो टू द ऑक्शन एरिना। आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो, आई वॉन्ट यू टू गो मतलब होता है मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। बहुत अच्छा फ्रेजेस मिलता है हमको, तो याद रखो। कहाँ? टू द ऑक्शन एरिना। ऑक्शन होता है एक नीलामी जो होता है, नीलामी। एरिना तो होता है ऐसा प्लेस जो नीलामी का जो मतलब प्लेस होता है, उसे ऑक्शन एरिना कहा जाता है। तो वहाँ तुम जाओ, ऑक्शन के मैदान में तुम जाओ, नीलामी के मैदान में तुम जाओ, मैं चाहता हूँ। एंड इफ़ एनीवन आस्क, पहले बार की तरह, इफ़ एनीवन आस्क, अगर कोई पूछे द प्राइस, दाम पूछे, डो नॉट से व्हाट, कुछ मत पूछो, कुछ मत मतलब बोलो, जस्ट राइज योर 2 फिंगर्स, अपना 2 उंगली उठा दो, बस 2 फिंगर्स उठा दो। द मैन वेंट, तब मैन पहली बार की तरह गया टू द ऑक्शन एरिना। आप कहाँ गया? ऑक्शन की नीलामी के मैदान में। एंड स्टूड, एंड खड़ा हुआ, इन द हॉल विद स्टोन, एक हॉल के अंदर खड़ा हुआ, विद स्टोन, पत्थर को लेके। आफ्टर अबाउट एन आवर, आफ्टर अबाउट एन आवर, एक घंटे बाद, एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी, अप्रोच मतलब पहुंचा उसकी तरफ, अप्रोच द मैन एंड सेड, एंड कहा, सर, सर कहा, आर यू प्लानिंग टू सेल द स्टोन, क्या आप उस स्टोन को, उस पत्थर को बेचना चाहते हैं? आर यू प्लानिंग, आर यू प्लानिंग, क्या आप प्लान कर रहे हैं टू सेल द स्टोन, उस पत्थर को मतलब बेचने की प्लान कर रहे हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, देन क्या है, हाउ मच इज दिस स्टोन, हाउ मच इज दिस स्टोन, उसका दाम कितना है, उसका कितना रुपीज़ है, कितना रुपया है? तो द मैन डज नॉट से ए वर्ड, पहली बार की तरह उस आदमी ने कुछ नहीं बताया, जस्ट रेज्ड हिज 2 फिंगर्स, अपना 2 उंगली उठा दिया। द ओल्ड मैन, अब वो बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है, सेड, $200। अब 2 उंगली को देख के ओल्ड मैन कह रहा है कि $200 है, आई विल टेक इट, मैं उसको खरीद के ले जाऊंगा, $200 मैं उसको खरीद के ले जाऊंगा। द मैन गॉट सरप्राइज, द मैन अगेन गॉट सरप्राइज, उस आदमी अगेन और एक बार गॉट सरप्राइज मतलब ताज्जुब हो गया। एंड केम बैक टू द प्रिएस्ट, एंड लौट के प्रिएस्ट को, पुजारी को कहा, सीड, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, यहाँ एक ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी था, इन द ऑक्शन एरिना, उस ऑक्शन के मैदान में, उस नीलामी के मैदान में, हु वॉज रेडी टू गिव, जो रेडी था मुझे देने के लिए, हु वॉज रेडी टू गिव $200 फॉर दिस स्टोन, उस पत्थर के लिए कितना, $200। वो मैन रेडी थी $2, एंड वो मैन मिल गया मुझे $200 देने के लिए रेडी है। अब उसके बाद क्या हुआ उस पैराग्राफ में, बहुत अच्छा स्टोरी है। द प्रिएस्ट रिप्लाइड, उस पुजारी ने आप रिप्लाई किया, गुड, गुड, अच्छा हुआ। नाउ द लास्ट प्लेस, अभी लास्ट जो जगह है, आई वॉन्ट यू टू टेक द स्टोन, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूँ कि तुम लेके जाओ द स्टोन, उस पत्थर को। लास्ट जगह कहाँ है? इज़ द पाउन शॉप इन द सिटी मॉल, सिटी मॉल में एक पाउन शॉप है, वहाँ ले जाओ। तो पाउन शॉप क्या होता है? पाउन शॉप मतलब ऐसा एक जगह होता है जो मोहरे की दुकान कहा जाता है। पाउन शॉप मतलब मोहरे की दुकान, जहाँ मतलब कुछ चीज़ें गिरो रख के लोन लेते हैं, मतलब ब्याज पे तौर पर जो रुपया लिया जाता है, उसे मतलब पाउन शॉप कहा जाता है। तो वहाँ ले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ ले जाओ। इफ़ एनीवन आस्क द प्राइस, अगर कोई उस जगह पे भी उसका प्राइस पूछे, दाम पूछे, तो जस्ट रेज योर 2 फिंगर्स, मतलब जस्ट क्या करो, अपना 2 उंगली उठा दो, पहली बार की तरह। द मैन वेंट टू द सिटी मॉल, वेंट मतलब गया, द मैन गया, वेंट टू द सिटी मॉल, सिटी मॉल पे गया। आफ्टर फाइंडिंग इट, वो सिटी मॉल मतलब उसको मिलने के बाद, ही वेंट इन टू द शॉप, उस शॉप पे गया, उस दुकान पे गया, उस मकान पे गया। जाने के बाद क्या हुआ, द शॉप ओनर, उस शॉप के जो ओनर थे, जो मालिक थे, सो द स्टोन, सो मतलब देखा, द स्टोन मतलब उस पत्थर को, एंड स्क्रीम्ड, एंड ऐसे मतलब ताज्जुब होकर चिल्लाया, स्क्रीम्ड किया, वाओ द स्टोन, ये पत्थर, ये पत्थर, इट इज़ द वन, इट इज़ द वन, वही पत्थर है, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस मैनी ईयर्स, मैं बहुत साल से उसे ढूंढ रहा हूँ। जब वो पत्थर देखा तो उस आदमी ने ऐसा चिल्लाया, उस मालिक ने, ओनर ने, वाओ दिस इज़ द स्टोन, मतलब आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस मैनी ईयर्स, बहुत साल से मैं उसको मतलब ढूंढ रहा हूँ। हाउ मच इज़ इट, कितना है, उसको पूछ रहा है कि कितना है। द मैन डज नॉट से वर्ड, पहली बार की तरह द मैन डज नॉट से, कुछ नहीं कहा, ही जस्ट रेज्ड हिज 2 फिंगर्स, अपना 2 उंगली उठा दिया। द शॉप ओनर सेज, अब वो शॉप ओनर, शॉप के मालिक क्या कह रहे हैं, $200,000, शॉप के मालिक तो और भी बढ़िया है, वो क्या कर रहा है, $200,000, $200,000, आई विल बाई इट, मैं उसको खरीद के ले जाऊंगा। अब वो मैन क्या कर रहा है, द मैन डज नॉट बिलीव, उस आदमी का मतलब बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, व्हाट ही जस्ट हार्ड, क्या सुन रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक पत्थर का दाम इतना है, कि वो मैन क्या है,
$200,000 देने के लिए तैयार है। ही केम टू द प्रिएस्ट, वो फिर लौट के कहाँ आया पुजारी के पास, एंड सेड द पाउन शॉप ओनर वॉज रेडी टू गिव $200,000 फॉर द स्टोन, कि वो जो पाउन शॉप के जो ओनर है, मालिक है, वो रेडी था टू गिव, मुझे देने के लिए कितना, $200,000, $200,000 देने के लिए रेडी है फॉर द स्टोन, उस पत्थर के लिए। द प्रिएस्ट क्या रिप्लाई कर रहे, द पुजारी स्माइल्ड, अब पुजारी ने स्माइल किए, एंड सेड, एंड कहा, नाउ अब, डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, क्या तुम समझे कि तुम्हारा लाइफ का, तुम्हारा जीवन का वैल्यू क्या है। पुजारी ने उसको समझाने के लिए मतलब अच्छी तरह समझाया, रियल लाइफ मतलब कैसा होता है समझाने के लिए उसको मतलब ऐसा कराया। अब कह रहे नाउ डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे, क्या तुम समझे द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे जीवन का वैल्यू, कीमत समझे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट, लाइफ क्या है, लाइफ तो वही है वेयर यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ, जहाँ तुम अपने आप को प्लेस करते हो, अपने आप को रखते हो, जहाँ तुम अपने आप को रखते हो लाइफ का वैल्यू वही हो जाता है। अगर तुम ख़राब प्लेस में, अपने आप को ऐसे प्लेस में रख रहे हो, कोई मतलब लोग वैल्यू नहीं जानते, तो तुम्हारा लाइफ का भी वैल्यू कम हो जाएगा। अगर तुम ऐसे मतलब लोगों के अंदर आपको रखते हो जहाँ लोग समझते हैं कि लाइफ का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो लाइफ यही है कि मतलब तुम अपने आप को कहाँ प्लेस कर रहे हो। तो प्रियस्ट क्या कह रहे हैं, प्रियस्ट कह रहे हैं योर वैल्यू कैन बी आइदर, योर वैल्यू कैन बी आइदर $2, तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाता है, $2 भी हो सकता है, एंड $200,000 भी हो सकता है। यू हैव टू डिसाइड, मतलब तुमको, यू हैव टू डिसाइड मतलब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम कहाँ, तुम अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो। अगर 200,000 के जगह अपने आप को प्लेस करते हो, रखते हो, तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरा वैल्यू कम हो, तो तुम ऐसे जगह पे ले जाओ, तुम्हारा कोई तुमका मतलब कोई दाम नहीं पूछेगा, वैल्यू नहीं देगा। फिर कह रहे हैं प्रियस्ट फॉर सम पीपुल, कुछ लोगों, फॉर सम पीपुल कुछ लोगों के लिए, यू आर जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड्स, यू आर जस्ट लाइक, तुम क्या हो, जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड्स मतलब गुजरते हुए बादल की तरह हो, आए और गए। दे विल यूज़ यू, वो तुमको मतलब यूज़ करेंगे, तुमको व्यवहार करेंगे, एंड फॉरगेट, तुमको यूज़ करके भूल जाएंगे, एंड फॉर देम, एंड उनके लिए, यू विल बी वर्थ नथिंग, तुम्हारा कुछ दाम ही नहीं है, मतलब तुम्हारा कुछ कीमत ही नहीं है उनके लिए। तो क्या कह रहे हैं पियश, फॉर सम पीपल यू आर जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड्स, कुछ लोगों के लिए तुम सिर्फ गुजरते हुए बादल की तरह हो। दे विल जस्ट यूज इट, वो तुमको यूज़ करेंगे, एंड फॉरगेट, एंड तुमको भूल जाएंगे, एंड फॉर देम, एंड उनके लिए, यू विल बी वर्थ नथिंग, तुम्हारा कुछ कीमत ही नहीं है। बट फॉर सम पीपल, फॉर सम पीपल बट फॉर सम पीपल मतलब कुछ लोगों के लिए, फिर कुछ लोगों के लिए, यू आर एवरीथिंग, कि तुम ही सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग, तुम ही सब कुछ हो। दे विल वैल्यू यू सो मच, वो तुमको बहुत वैल्यू करेंगे, तुम्हारा मतलब बहुत इज्जत करेंगे, तुमको बहुत दाम देंगे। दे विल नेवर लीव यू, एंड वो तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं जाने देंगे। तो हमको मतलब डिसाइड करना है, हमको कहाँ रहना है, कहाँ कहाँ जाना है। सो उसके बाद कह रहे हैं कि सो इट इज़ अप टू यू, ये टोटल तुम्हारे पास ही है टू डिसाइड, कि तुम अपने डिसाइड करो, आप ही डिसाइड करो वेयर यू प्लेस योर सेल्फ इन लाइफ एंड वैल्यू इट, अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो, तुम ही डिसाइड करो, अपने आप ही डिसाइड करो, जहाँ लोग वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम मतलब समझ गए मॉरल स्टोरी क्या है। मॉरल यही है कि ईच वन ऑफ अस पजीज यूनिक वैल्यू इन आवर लाइफ, ईच वन ऑफ अस मतलब हम में से हर एक पजीज करते हैं, मतलब रखते हैं यूनिक वैल्यू, एक ऐसा यूनिक वैल्यू जो किसी के पास नहीं है, एक ऐसा हमारे पास मतलब टैलेंट है, हमारे पास कीमत है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। वी हैव टू यूटिलाइज इट, हमको उसका सही मतलब यूज़ करना चाहिए। यूटिलाइज होता है सही यूज़ करना, सही तरह उसका मतलब व्यवहार करना चाहिए। इट इन द प्लेस वेयर इट इज़ मोस्ट वैल्यूड, ऐसा प्लेस में हमको ले जाना है जहाँ उसका मोस्ट वैल्यूड, वेयर इट इज़ मोस्ट वैल्यूड, जहाँ उसका सही वैल्यू, सही कीमत दिया जाता है। हमको हमारा लाइफ को ऐसा जगह पुट करना है, ऐसा जगह रखना है। बिकॉज वी आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन सम प्लेस, उसका कारण क्या है, वी आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस मतलब हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। वी आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता इन सम प्लेस, कुछ प्लेसेस में, और बाई सर्टेन पीपल, और कुछ लोगों के जरिए, कुछ लोगों के द्वारा हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। डज नॉट मीन वी डू नॉट हैव वैल्यू इन आवर लाइफ, मतलब सर्टेन पीपल डज नॉट मीन, और कुछ लोग समझते हैं, डज नॉट मीन समझते हैं वी डोंट हैव
वी डोंट हैव वैल्यू इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ का कोई मतलब कीमत ही नहीं है, ऐसा कुछ लोग समझ लेते हैं। वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइजिंग, वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, हमको एक्सप्लोर करना है, हमको नए नए जगह ढूंढना है, हमको अन्वेषण करना है, अन्वेषण जो कहा जाता है। वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग मतलब करते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है, ढूंढ मतलब ढूंढते रहना है, एंड यूटिलाइजिंग एंड सही यूज़ करते रहना है आवर टैलेंट्स, हमारा जो टैलेंट्स है, हमारा जो प्रतिभा है, उसका सही यूज़ एंड एक्सप्लोर करते रहना है, एंड डू द वर्क हार्ड वर्क, एंड हमको हर वक्त क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करना है। वन डे एक दिन वी विल फाइंड ए प्लेस, हम ऐसा जगह हमको मिलेगा, वेयर दे गिव इम्पोर्टेंस टू आवर लाइफ, जो हमको इम्पोर्टेंस आवर लाइफ को मतलब हमारे जीवन को इम्पोर्टेंस देगा, हम ऐसा जगह मिल जाएगा हमको। तो मॉरल वैल्यू बहुत अच्छा है कि हमको मतलब ऐसे तैसे जगह में नहीं ले जाना है जहाँ कोई वैल्यू नहीं है हमारा, जहाँ कोई कीमत नहीं है, जहाँ कीमत नहीं है बस अपने आप को वहाँ मत ले जाओ। आप समझो, आपके लाइफ को समझो, आपके वैल्यू को, आपके प्रतिभा को समझो, समझ के अपने आप को ऐसे जगह पर ले जाओ जहाँ लोग आपको मतलब वैल्यू करते हैं, आपका वैल्यू दिया जाता है। तो लाइफ को ऐसे ही मत मत मतलब यूज़ करो। एंड हर किसी के लाइफ में वैल्यू है, एक यूनिक मतलब पोजेस करते हैं वैल्यू, तो उसको समझो, उस टैलेंट को समझो, समझ के अपने लाइफ को ऐसे जगह पर पुट करो। तो ये बहुत अच्छा लेसन दिया गया है, स्टोरी भी बहुत लंबा था, हम कवर कर लिए उसको, बहुत अच्छा सेंटेंसेस हमको मिले हैं, एंड वर्ड मीनिंग भी हम मतलब समझाने की कोशिश की है। तो आप उसको समझने की कोशिश करें ताकि आपका जो वर्ड मीनिंग्स, जो वोकेबलरी का जो नॉलेज है वो मतलब ज़्यादातर इंप्रूव हो, एंड पढ़ने की भी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी हम नई स्टोरी जब डालें आप मिस ना करें। तो चले बने रहिए हमारे साथ, एंड हम नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।